चाहे तो तेरा What's up everyone? आ जाओ आ जाओ आ जाओ. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up everyone? What is up? 100, 110. MTV Hustle from home every day with me. अब तक तो आप लोगों को मेरा नाम पता हो जाना चाहिए. Alright. MTV Hustle from home every day with me 6 p.m. My name is Paritosh Parmar and I represent to the culture. And yes, this is MTV Hustle from home 6 p.m. with me. And जिन जिन लोगों को नहीं पता MTV Hustle from home घर पे भी आ रहा है every Sunday 7 p.m. और let's talk about आज का गेस्ट. किसको पता है आज के गेस्ट कौन है? Everyone knows, it's a women's week. So आज की गेस्ट का नाम है Star Nick. Yes, we're just waiting for her to join any time. And yes, it's gonna be a lot of fun. Let me check if she's there. MTV Hustle from home, 6 p.m. What's up, guys? What's up? जो भी सवाल रहेगा drop करो. I'm just hello. How are you? I'm good. I'm good. I'm good. आवाज आ रहा है सही से? बहुत अच्छे से आ रहा है. अच्छा ठीक है. What's up? क्या चल रहा है लॉकडाउन? बहुत अच्छा चल रहा है. And actually enjoying it. Okay. Now finally, so I basically there was a time जब मुझे chef बनना था. So I guess now I have got the time to cook and to serve. So I am cooking a lot these days. Okay. So I think I have a lot of questions to ask. बहुत से questions हैं जो DM में भी आए थे, हम लोगों ने check किया. A lot of questions are common जो आपकी है आवाज सो नहीं आ रही बात से. मेरी आवाज नहीं आ रही है. Tell me. या सो आई एम सेइंग कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं. बहुत सारे DM भी आ चुके थे क्वेश्चंस के. Can I join you back? Can I join you back? Yes, 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 of course. Yeah. Okay, guys. So Nick was here and there's some technical issue, but she'll be with us anytime. So हाँ, so जो लोग के जो भी सवाल है ड्रॉप करते जाओ. I have my own set of questions which is from the people. So and in case आपके पास कुछ रहेंगे तो ड्रॉप करते जाना. We'll be taking everything. Try to take as much as possible. And yes, let's go. Let's see if she's here. Star Nick, MTV Hustle from home 6 p.m. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up everyone? क्या चल रहा है? क्या चल किसी ने like it's been like 15-20 days किसी ने कुछ रैप लिखा है तो बताओ यार कमेंट में. तुम लोग रोज शाम को 6 बजे देखते हो. You getting to know everyone. मतलब जो भी रैपर्स पॉसिबल है सब आ चुके हैं MTV के पेज पे, MTV हसल के पेज पे. तो यार किसी ने कुछ लिखना शुरू किया है तो बताओ. वी आर रियली एक्साइटेड. कुछ रहेगा तो बताओ यार. बहुत मजा आएगा क्योंकि आई होप आप लोगों को सब नॉलेज घर पे बैठ के मिल रहा है शाम को 6 बजे. एंड वी इज वेटिंग फॉर निक टू जॉइन अगेन. Hi, I'm so sorry यार थोड़ा इंटरनेट का इशू था. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. अब ठीक है. Yes, better. So यस, how are you? आई एम गुड यार. सो मैं बोल रहा था कि बहुत सारे हाँ जी. क्वेश्चन है. बहुत सारे क्वेश्चन है जो लोगों से आए हैं. काफी एक दो क्वेश्चन Okay. इंपॉर्टेंट मेरे साइड से है. सो Okay. इफ यू आर ओके लेट्स स्टार्ट. Sure, please. सबसे पहले तो यार नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है जो Star स्टेज Nick. नेम है? यस. Okay. So इसके पीछे रीजन ये है because मुझे नहीं पता था if I could ever be a star, but my mother always used to call me like मेरी आंखों का तारा, like that. So so I was like कि चलो ठीक है, मतलब स्टार बने ना बने वो दूर की बात है. Let's be a star for my mother. And Star Yes. Nick is my name, so yeah, that is Okay, how so it came. so Nick is your real name. My name is Nikita. So सब Nikita. मुझे Nick So- बोलते ही हैं. Okay, okay. Yeah. ठीक है, fair enough. तो सही हो गया. And congrats for your song. They are doing really good. Especially the Corona वाला Thank you था. so much. उसमें Thank एक you. लाइन थी like सोचा न था. Oh God, that got goosebumps. मतलब रैप तो obviously अच्छा है, but there's one line that सोचा न था ऐसा दिन भी आएगा जीव जंतु. Wow, like Yeah, कैसे it was like जो सोचा ना था वो दिन भी आएगा.
जीव होगा कैदी जंतु, आजादी पाएगा, वाह। जो सोचा ना था वो दिन भी आएगा। कैसे लिखा यार, मतलब आई नो द सिचुएशन कोरोना का जो हो रहा है वो, बट सच डीप लाइंस, लाइक हाउ हाउ यू गॉट इट? Okay, so whenever I write something, I हम्म can only write about the topic जो मैंने सफर किया है या फिर मैं हम्म देख पा रही हूँ. I have हम्म been around that. So I mostly I can write about those topics. ओके। So yeah, that is how. So I knew कि कोरोना में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं. I knew about the राइट। situation Italy and everywhere. So तब मैंने नोटिस किया मेरे घर के पीछे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं. एंड तो वो सारी चीजें देख के मुझे ऐसा लगा आई शुड डू समथिंग, आई शुड राइट समथिंग ओवर इट. सो या दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड इट एंड आई डिड इट. वाह 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 वाह। बिकॉज मेरे को किया गया, लाइक यू नो गूजबम्स आ गया ऐसे पूरे बॉडी में कि यार क्या लिख दिया है ऐसा। और दूसरा एक जो मेन चीज आई वांट टू आस्क, ओके लेट्स गो बैक। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ यू गॉट इनटू रैप, लाइक यू नो क्या जर्नी रही है? ओके ओके, सो बेसिकली आई स्टार्टेड रैपिंग व्हेन आई वाज 17-18 year old. ओके। और शुरू ऐसे हुआ था, आई हैव ऑलवेज बीन इनटू म्यूजिक सिंस माय चाइल्डहुड. लाइक मैं 2-3 साल की थी तब से मुझे म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था. एंड ऑलमोस्ट आई लव्ड इंस्ट्रूमेंट्स, आई लव द खुशबू जो सौंधी सी आती है जब आप एक इंस्ट्रूमेंट के शॉप के अंदर जाते हो, वो वुड का जो खुशबू होती है, आई रियली लव इट. सो बचपन में आई स्टार्टेड प्लेइंग वायलिन से शुरुआत की थी. एंड धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड प्लेइंग गिटार एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल. और फिर उसके बाद आफ्टर अ पॉइंट आई स्टार्टेड राइटिंग. तो पहले मैं गाने लिखा करती थी, बड़े स्वीट से सिंपल छोटे छोटे. और लिखते लिखते व्हेन आई यूज्ड टू सिंग इट, तो एक सबसे पहला गाना मैंने रिलीज किया था क्या, तो लोगों ने मुझे कमेंट किया कि वाओ व्हाट अ रैप. तब तक मुझे पता भी नहीं था कि रैप भी कुछ होता है. ओके। सो जब लोगों ने बोला ओके दिस इज अ गुड रैप, सो मैंने जाके देखा कि भाई ये रैप है क्या. I saw videos, I saw the things, you know, online. Right. I thought, okay, I want to do this. This is what I do because I am into writing, and then I don't want to write and give away my song to someone else to sing. So yeah, that is how it started. Wow, wow, wow. Also, one more song which sent message across was Nariwal. So वो कैसे आया दिमाग में? Like when you wrote that song, even that song has like lines which will like keep killing it. Like हर line में मतलब बोलते ना एक ऐसा चमाट है. So मतलब क्या था उसके पीछे की स्टोरी? So उसके पीछे की कहानी ये है, and that is also a real life based story. And I had a friend who used to think like that. और वो इसी तरीके से सोचती थी, और वो मुझे भी काफी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती थी कि यार डू दिस डू दैट, और बहुत इन्फ्लुएंस करती थी. और वो लड़की होने का फायदा हर स्टेप पे उठाती थी. ओके। सो जहाँ पे नहीं भी उठाना चाहिए वहां पे भी उठाती थी. सो एंड हमारी बात शी स्टॉप टॉकिंग टू मी. ओह गॉड. बट नहीं, बहुत उसमें भी लाइन बहुत क्रेजी था, बहुत क्रेजी लाइंस थे उसमें. या सो नारीवाद जब शुरू हुआ तो वो ऐसे शुरू हुआ, ओके फाइन ये ऐसा कुछ करते हैं. तो जब मैंने शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं पॉजिटिव कि लड़कियों को क्या फायदा होता है लड़की होने का. राइट. देन वो बनते 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 जो फाइनली बना, इट वाज लाइक ओके ये तो सूडो फेमिनिज्म पे बन गया अब. ऑफ कोर्स इट टुक अ व्हाइल. इट टुक अ व्हाइल. एंड इनिशियली जो मैंने लोगों को सुनाया, मैंने अपने फैमिली को सुनाया कि दिस इज समथिंग आई एम डूइंग, तो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया था वो सॉन्ग ऑनेस्टली. ओके. एंड जो वो बनते बनते सबका हेल्प मिला, मुझे सब बोल रहे थे कि नहीं थोड़ा अच्छा करो और अच्छा करो और अच्छा करो. तो फाइनली जो पूरा वो जो गिफ्ट रैप होके आया, then it was mind blowing. And the response from people was amazing. Nice. So you already had like support पहले से family से, like as you said you were into music और थोड़ा बहुत already चल रहा था काफी टाइम से. So you always got support.
I was always supported by my sister, Mm-hmm. but after a point, my mother thought कि कुछ करियर नहीं हो पाएगा अच्छे से, Right. एंड ऑनेस्टली थोड़ा मुश्किल है म्यूजिक में या फिर बॉलीवुड में जाके करियर बनाना इज रियली डिफिकल्ट Mm-hmm. बिकॉज नाउ द कंपटीशन इज ऑल्सो हाई, Of course. right? So yeah, so she was like, stop doing it now. I think you should more focus on your career that is more stable. Right. So, and I initially I never wanted to step into rapping as a career. I never wanted to select rapping as a career. Mm-hmm. So it eventually became. Right. So, So शुरू करते हैं जहाँ से मतलब you went mad. Like talk about let's talk about the show Hustle. Okay. okay, So tell us जो पहला कॉल आया था because it was the first show. Like so किसी को पता yeah, because yeah, roadies now we know कि हाँ roadies का format ये है तो एक prep होता है दिमाग में. yeah, But yeah. तो इसका Yeah, so कैसा था like? Hustle. Okay, so Hustle. When I got a call, I honestly said that I'm not coming. Okay. Then उस time I still remember her name, Aishwarya है team में एक. I told her I'm not coming. I don't want to come. So बोलती है but why? मैंने कहा नहीं यार, you won't select me and all. हाँ. So मैंने कहा I won't be selected, so I can't. एंड उसके पहले मैंने एक सॉन्ग लिखा था एक्स, जो काफी वायरल हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया. We'll talk about जो it एक later. यस तो वो सॉन्ग का जो जिसने मेरे साथ वो सॉन्ग किया है, जो रैपर है एपिक सेंसेशन, सो वो जब ऑडिशन देने गया तो उसको बोला गया कि पलाश वेयर इज निकिता. तो उसने मुझे कॉल किया कि यार जजेस वर आस्किंग अबाउट यू. So I was like, yeah, I think this is serious now. Okay. I should give it a second thought. Right. So yeah, so I gave it a second thought and I went to Bombay and I gave my auditions. Wow. And luckily I got selected. So when I was on the stage, even when I was on the stage, I thought, no, I'm not getting selected. I mean, how can I get selected? There are much more better people than me. Right. So मुझे लगा कि okay, so because females are not, there are very few females जो rapping करते हैं अभी. Right. इंशाल्लाह I really wish कि फ्यूचर में ज्यादा हो जाए. So I knew कि there are very few females, but yeah, overall I am not very good, I thought. But yeah, so and then जब सबसे पहला गाना ही, पहले एपिसोड का गाना ही वायरल हो गया, so then I was like, okay, I am something, I guess. Yes. So like if you like how was your whole journey अगर शो के बारे में मैं पूछूं? Okay, so शुरू में I was little scared by listening to people, but then eventually I got to learn a lot from them, and everyone, not even a single person there जिसका मैं ये बोलूंगी इससे कुछ सीखने को नहीं मिला. हर एक इंसान वहाँ पे इतना, मतलब बहुत, I think जितने भी रैपर्स थे वहाँ पे वो सब अलग जगह से आए थे. Right. मतलब एंड बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी. कर सकते आप दो लोगों को. Not any two people can be compared on the stage of Hustle. So selection was amazing. And then सबके साथ रहना, होटल रूम में मस्ती करना. फर्स्ट एपिसोड हम सबने साथ में बैठ के देखा था. जो ऑडिशन का जो पहला एपिसोड था, हम सब एक ही रूम में बैठे थे और हम सब बैठ के देख रहे थे. कोई बेड पे है, कोई इधर जमीन पे बैठा हुआ है. देन प्रतीक भैया वाज आल्सो देयर, जो हमको मैनेज करते थे कंटेस्टेंट्स को. सो वो भी थे, तो बहुत मजा आता था. इट वाज फन. बस जिस दिन शूट होता था उसके 2 दिन पहले सब गायब हो जाते थे. सब अपने अपने रूम्स में होते थे, प्रैक्टिस कर रहे होते थे. बट अदर देन दैट तो 5 दिन बहुत ही क्रेजी रहता था. Nice. So it was amazing. If I want you to pick like your favorite from the show, तो कौन रहेगा? I know it is difficult, but favorite from the show. Favorite from the show. I guess PPR was amazing. Then RCR was amazing. I'm confused. I mean, मुझे Bella is amazing. So बहुत अच्छे हैं. I cannot pick anything. Yeah. Actually. Yeah. So, EPR is love. Yeah. Tell me one performance. Which was your favorite performance?
And one performance which you think कि यार अगर मेरे को ये वापस मौका मिले तो I'll kill it. I guess third performance जो मेरा था. Okay. That was okay. So I'll tell you the story उसका भी. हाँ हाँ. So जिस दिन मेरा third performance था, that was पागल है. हाँ. Okay. So You talking about पागल है का, yeah. तो I sung लड़का पागल है. And that was the song जो मैंने पहले थोड़े दिन पहले लिख रखा था. And I was like, ठीक है, I'll perform it someday. So but जो actually मैंने शो के लिए लिखा था, that was पागल है for my sister. Like लड़की पागल है, and that was for my sister. And I will sing that song. Okay. और वो जब मैंने गाना लिखा था, so बहुत एंड तक लिख पाई थी. And I'm not very good with memorizing. और वहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता था. So वो प्रेशर के कारण बिल्कुल याद ही नहीं रहता था. एंड ऑनेस्टली जैसे ही शो खत्म हुआ एंड आई वाज आउट ऑफ द कॉरिडोर, और वहां पे मुझे ऐसा लगा, ओह नाउ आई रिमेम्बर द सॉन्ग. सडनली मुझे सारे पूरे याद हो गए. So I guess that was pressure जिसके कारण I couldn't sing that song, and I would like to sing it because that was like one of my favorite and good creation. So it was like this. एक थी लड़की जो मुझसे ही दिखती, बोली पर चीजें चले उड़े मुताबिक थी, महारत हासिल उसे करने में दुर्गति, दुर्भाग्यवश वो मेरी बहन थी, उसे अनुमति मुझे चीजें बैन, प्लानिंग प्लॉटिंग कर छीने मेरा चैन, वो करे तो कर्म मेरे लग दे कांड, लगे ये छोरी मुझे पूरी इनसेन नहीं, घर की बड़ी बेटी घर की रानी बनी, 1.25 साल बाद घर नौकरानी जनी, मुझसे करवाती अपने सारे काम, वो भी बिना दाम, खुद करे विश्राम, मैडम आइंस्टाइन किताबी कीड़ा करी गई तुलना, फिर चप्पल उसे सही पीड़ा था, मैं सोचा इसे बना लूं पार्टनर इन क्राइम, अनजाने थी शुरू होने वाला बुरा टाइम, अक्ल बढ़िया भैंस बताओ, सोची सखी बनाने की, घाटे की दुश्मनी तूने पाली, अब पछताएगी ये लड़की, पागल है पागल है पागल है पागल है. Nice, nice. Thank you so much. Thank you so much. बहुत मजा आ रहा है. I want कि अगर मुझे, if I could get back to the same time, जो हम हमेशा सोचते हैं कि काश हम वहां पे वापस चले जाए, काश ये फिर से हो जाए. तो हम क्या करें? I think now because I remember the song, so I would rap this. I mean, it was like a tribute to my sister also. See, second half was good. So do you remember the best compliment जो मिला शो के like journey में? Best compliment तो ये था that I choose good. I have a good selection of words. Okay. बाकी when I was singing this song नारीवाद, तब there was a point जब रफ्तार भी was like वो खड़े हो गए एकदम, खड़े होकर he clapped for me, and I guess that was the point. That is the most memorable, and okay. I'm glad it has been captured very nicely. So that is the best moment. By the way, Raftar sir is there. Raftar Paji is there. Shout out to Raftar sir. Raftar bhai. So yes. So coming back to जो मैं पहले बोला क्या है, like there are two of my again most favorite जो मेरा personal है, which is Dear X जो एक था, उसके पीछे की story. Because when I saw that song, I was like, dude, मतलब कौन है ये? सबसे पहला उसके lyrics जो पैर थे तुम लोगों को, बाद में the connect, the video shot, the video edit, it was like a package. जो जब वो गाना देखते हो तो it's like ये बनाई इसके लिए, और कोई भी चीज ऐड होती तो मजा नहीं आता, निकालते तो मजा नहीं आता. Tell us that story. Because you loved it, I wanna tell you that Sunday को एक और song आ रहा है जो similar to X है. Wow. And yeah, और उस song का नाम रहेगा I Hate This Lockdown. Oh, okay. Nice. So yeah, if you want, I can sing उसकी few lines, but maybe later, later. So पहले हम X की बात करते हैं. Yes. So X ऐसा हुआ that I was doing this song for Amazon Prime, जो rapes के ऊपर था, and वहाँ पे I met this guy Palash, whose stage name is Epic Sensation. So when I met him, उसने मुझसे आके बोला कि let's collaborate, let's do something. And that was the time जब हम लोग ने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों को
उनकी लाइफ दिखाए, बिकॉज ऑनेस्टली वो सॉन्ग अगर किसी भी बंदे ने सुना होगा जो रिलेशनशिप में है या फिर कभी रह चुका है, तो वो Definitely connect 110% रिलेट करेगा ही करेगा. yes. Okay, so yeah, that is how it started. So I was like, चलिए कुछ couple conversation करते हैं. So couple का अगर normal conversation होएगा तो लोग इतना interest नहीं दिखाएंगे. हाँ. So I was like, चल let's fight, let's fight in the conversation. थोड़ा Big Boss style करते हैं. So he was like, चलो do that. Then we started writing it. So I wrote my part. हम लोग ऐसे लिखते थे कि थोड़ा सा 4 लाइन मैं लिखती थी, फिर मेरे बाद का जो पार्ट है फिर वो लिखेगा. लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैंने अपना पूरा लिख दिया फिर उसने अपना पूरा लिखा. नो, इट वाज लाइक मैंने लिखा फिर उसने लिखा फिर मैंने लिखा. दैट इज हाउ वो कंबाइन करके साथ में बैठ के जितना भी उसमें करेक्शंस वगैरह करने थे. सो वी डिड इट ऑल एंड देन फाइनली जब बन गया उसके बाद शूटिंग में इतना डिले हो रहा था, इतना ज्यादा डिले हो रहा था, बिकॉज वी वर नॉट गेटिंग अ गुड कैमरामैन, नॉट अ गुड सिनेमैटिक. देन फाइनली वी गॉट अ पर्सन जो काफी अच्छे काम कर चुका था एंड देन हमने उसको बोला प्लीज ट्राई कर दे. नहीं, because shout out to the whole team, because especially camera team, because the location, the edit, the एक है जो रेस्टो में तुम लोग बैठे, एक है जो सीडीओ पे है, मतलब एवरीथिंग दैट कनेक्ट इन द वीडियो इज सो रिलेटेबल कि मतलब यार वो लगता है कि पैकेज था पूरा. नहीं, हैट्स ऑफ टू द होल टीम, मतलब जिसने भी काम किया. Yeah, it is a very nice song also. अभी भी सुनते हैं ना तो मजा आता है सुनने में. Yeah. This song is like any time, especially as you said कि जो रिलेशन में रहेगा वो सुनेगा तो डेफिनेटली कनेक्ट करेगा, लड़का हो लड़की हो. Yeah. और एक सॉन्ग था लाडली जो आया था, इवन दैट हैड अ वेरी डीप लाइन्स. आई थिंक वो इंस्टाग्राम पे है आपके. वो मेरा यूट्यूब पे भी है. अच्छा, यूट्यूब पे भी है. ओके, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, निर्भया के ऊपर था आई गेस. हाँ, या तो एक्चुअली वो सॉन्ग उसी चीज के ऊपर था कि इंसाफ नहीं हो पा रहा था. तो व्हाट आर वी डूइंग, लाइक इतना सीधी सी चीज है उसका, मतलब जब आपके पास सारे बहुत लूपहोल्स होते हैं, हमारे लॉ एंड सिस्टम में बहुत लूपहोल्स है. So, कोई भी कैदी होगा, कोई भी होगा, बहुत इजीली भले छूट नहीं सकता है बट वो काफी दिन तक जिंदा रह सकता है. और जब तक लोगों के मन में डर नहीं होगा ना तो ये होता ही रहेगा. लाइक सूडो फेमिनिज्म, अगर वो एक तो फेमिनिज्म आया था जब, तो एक पॉजिटिव होप लेके आया था कि चलो अब लड़कियां खुली हवा में सांस ले पाएंगी. एंड ऑनेस्टली जब मैंने ये सूडो फेमिनिज्म लिखा था, 2-3 लोगों के बारे में, 2-3 लोगों की जब स्टोरीज सुनी थी अबाउट फेक डाउरी केस एंड I have also heard कि मेरी एक फ्रेंड थी, she actually wanted to go somewhere, उसके पास व्हीकल नहीं थी and she was asking for lift, और उसको कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था just because क्योंकि कुछ women अपने फायदे उठा लेती हैं basically. Wow. Okay. So yeah, that is why. So yeah, वो बहुत. So मतलब हाँ, yeah, tell me. I still get goosebumps when I listen to that song. Because every line, matlab, see, right now I'm confused कि if I want you to ask like what is your style, like because you have written everything, like एक X वाला हो गया, एक जो निर्भया का जो हो गया, and then again there's नारीवाद. So like what is your style? Can you just explain? यार मेरा style, so you won't believe it is something like क्या बोलेंगे, sad songs, sad raps. Heartbreak is my style. I think that is the most difficult topic. Like अगर किसी को लिखने बोले, like I feel because a lot of people, lot of rappers these days they can rap on लड़कियां, दारू, गाड़ी, वो सब. But when it comes to such topics, जैसे निर्भया का एक टॉपिक हो गया या नारीवाद का है. But I also do लड़कियां, गाड़ी, दारू. My song will come on लड़कियां, गाड़ी, दारू soon. So I think you're like a versatile, like I am versatile. That brings me to the next topic कि what is your favorite topic to write on? अभी आपने तो बोल दिया है, बट फिर भी अगर आपको एक टॉपिक दिया जाए कि ये टॉपिक पे लिखना है तो कौन सा टॉपिक सबसे इजी रहेगा? Heartbreak, any day. Any day? क्या बात है? Any day. तूने इश्क किया, सॉरी, इट वाज एक मैंने लाइन लिखी थी, मुझे इश्क हुआ जब तूने दिखावा किया.
मुझे इश्क हो गया जब तूने दिखावा किया, मैंने मोहब्बत की, तूने सिर्फ दावा किया. क्या बात है, क्या बात है. नाइस नाइस So नाइस. yeah, टेल मी. so I am good at it, and people ओके. have done justice to me. Like I would say my exes have done justice to me because of them I'm writing all these things. वाह वाह वाह. Yeah, नहीं, अच्छा है ना, कुछ सीखने ही मिल गया. yeah, of course. Tell me, like, what is the creative process when you write? So a lot of people go into that zone कि यार, किसी किसी को अंधेरा पसंद है, कोई कोई लोग रात के समय लिखते हैं. So what is your process when you write? क्या situation होता है? Okay, so it depends. जैसे कोरोना, you won't believe वो कोरोना वाला कोरोना नहीं, this song, एक कैंसर वाला सॉन्ग आपने सुना है? मैं सुना है. Yes. Yeah. So I guess that is also one of my best creation. Okay. और वो रिकॉर्डिंग, म्यूजिक, सॉन्ग, एवरीथिंग वो 24 आवर का प्रोजेक्ट था. वो लिखने से रिकॉर्डिंग से लेकर शूट शूट पूरा 24 आवर्स में हो गया है. Wow. Nice. So, Yeah. yeah. Can you see me properly? Yeah, yeah. Fine. Fine. Mm-hmm. Okay, because I cannot see you. Okay. I can hear I'll you go near to the properly. Wi-Fi. I'll go near to the Wi-Fi. Maybe कुछ इशू है. Okay. Okay. No, you're still blur. Anyway, yeah, आवाज आ रही है. Yes. So I again, like, talking about how you write songs and make songs. So I just want to ask, what's your like process जब लिखने के बाद एक गाना रेडी होता है, तो do you go for beats first कि यार पहले एक बीट मिल जाए उस पे गाना लिखते हैं, कि यार पहले गाना लिख लिया है then you search for beat? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे अच्छे से. अभी आ रही है? One second. Let me check my. You there? Yeah. Now I can see you. Oh, finally. Yes. Perfect. Yeah. Yeah. So I was asking कि when you write, ये तो हो गया लिखने का process, but when you look for a beat, so do you write first and then look for a beat, या पहले beat आ जाती है दिमाग में then you write a song? No. So basically, I produce also, Okay. Wow. but these days there is a very sweet guy Rahul who is producing my songs, and he's very good producer. Okay. So yeah, so वो मुझे बेचता रहता है म्यूजिक की, इस पे देखो कुछ बना के देखो, इस पे कुछ बना Right. के देखो, इस पे कुछ बना के देखो. हाँ. So I'm like okay चलो ठीक है. तो फिर धीरे धीरे करके कुछ लिखना शुरू करती हूँ, एंड देन वो उसको पॉलिश करता जाता है. सो Okay. बहुत Okay. साइमल्टेनियसली चलता है दोनों. Right. Okay. लाइक So म्यूजिक भी बनता जाता है, साथ में लिरिक्स भी बनते जाते हैं. right. And talking about lyrics, okay, मतलब एक रैप में काफी चीजें रहती है, like melody, verse, hooks, मतलब या इतना. So which is that one thing which you pay attention on कि यार मेरा hook कुछ भी हो जाएगा, hook अच्छा होना चाहिए, या मेरे verse अच्छे होने चाहिए, hook ठीक है, hook चलेगा थोड़ा melody. मुझे पहले ऐसा होता था, पहले मुझे हुक से इतना फर्क नहीं पड़ता था. मुझे पता नहीं था कि हुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. Right. सो दिस आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डिड आई स्टार्ट रैपिंग. Hmm. सो मुझे लोग ये भी बोलते थे कि तुम्हारा जो गाने होते हैं वो गाने जैसे होते ही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ उसमें हुक ही नहीं होता. Okay. सो मोस्टली जो मैं सॉन्ग्स लिखती हूँ वो ऐसा ही रहता है, चलता जाता है. Right. बट अगर उन सबको हटा के देखे तो नाउ आई नो हुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई मोस्टली आई बिलीव कि लाइंस ऐसी लिखनी चाहिए जो लोगों को छू दे, एंड Okay. वो लाइन इजी प्लस अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग उस चीज को गुनगुनाए बाद में. Right. सो या So, one thing, if you want to give a message to anyone who has just started writing, जो देख अभी शुरू किया है, तो क्या चीज रहेगी जो Yeah. दिमाग में रख के चलना चाहिए कि when you start writing? यार एक चीज ना मुझे ये बतानी भी थी लोगों को. आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि लोग क्या करते हैं ना,
राइमिंग ढूंढ लेते हैं, हम्म। ये नाम काम शान बान जो भी है, फिर राइट। उसके हिसाब से लाइनें लिखते हैं. ओके। बट आई नेवर डू दैट. आई नेवर डू दैट बिकॉज मुझे राइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बात कहना है. ट्रू। राइट. सो अपनी पहले सोचो कि लिखना क्या है, किस टॉपिक पे लिखना है. उस वो टॉपिक पे सोचो, फिर आप आगे बढ़ो. जैसे आज मैंने लिखा है, आज एक चीज लिखी है मैंने, जो मैंने पहले अपना थॉट प्रोसेस क्लियर किया. सबसे पहले पंच लाइन लिख दी, मतलब लास्ट 2 लाइन मैंने पहले लिखी है. ओके। वरना लोगों को ना पंच लाइन नहीं मिल पाती. फिर लास्ट 2 लाइन्स पहले लिखी, फिर पहली 2 लाइनें जो है वो ऐसी लिखी जो उससे सिमिलर हो, ताकि उसको और ज्यादा मीनिंगफुल बनाए. राइट। तो वो लाइन्स ये थी, बोते हैं बबूल का बीज, चाहत में आम की प्रीत. बोते हैं बबूल का बीज, चाहत में आम की प्रीत, माँ बाप को घर से निकाल कर कैसे कर लेते हैं बच्चों से उम्मीद. Wow. Oh God, this is so deep. Oh shit. Yeah. Wow. Wow. So ना, बोते हैं बबूल का बीज, रखते हैं आम की प्रीत, माँ बाप को घर से निकाल कर कैसे कर लेते हैं बच्चों से उम्मीद. Wow. Wow. So this is something I like, touching people's heart. Yes, bro. Like मैं वही सोच रहा हूँ. Like what is your inspiration? ये सब कहाँ से आता है? Like I don't know. कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि लिखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मैंने लिखा है. हाँ मतलब. और मेरी exactly. मतलब मैंने भी जब सुना, like when I started listening to you, like show से, of course show के through काफी लोगों को पता चला. I was one of them जो show से पता चला. Then I got into your song X वाला, and then I saw वाला. Oh God, like is she only writing? मतलब ऐसा, मतलब वही है जो लिख रही है या कोई उसी के लिए लिख रहा है? मतलब so मैंने एक और चीज लिखी थी, लो सच्चाई कहने, जो सो बेसिकली ना ये चीज मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि अब ऐसा होता है ना, नाउ पीपल नो अबाउट मी. और पहले लोग भी जानते थे, जो वो पहले डिफरेंट थे, आज डिफरेंट है. और आज भी लोग हैं, लोग बहुत से लोग हैं जो नफरत भी करते हैं, क्योंकि लोग ना आपको ऊपर चढ़ता नहीं देख पाते. Exactly. एंड इट्स रियली लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता. लाइक आई एम लिखिंग, ठीक है कोई बात नहीं यार, इट्स ओके. मैं अपने लिए कर रही हूँ, जो कर रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है. सो ये लाइन लिखी थी, आई थिंक यू विल लाइक इट. इट इज लो सच्चाई कहने आई, जो भी करे मेरी बुराई, ईमान वाले मुझसे खुश और संतुष्ट है मेरी आई. Wow. Oh God, you had that eye, that Marathi. Yeah. Wow. थे देते माँ को मेरे राय, कैसे लड़की संभाली जाए, आज उनके लड़कों से ज्यादा मेरी माँ की बेटी कमाए. Oh shit, I'm going. Okay, you're killing it. मतलब I think like you have all the qualities. You can do a stand up also. Like I मतलब शेर शायरी वाला मैं बोल रहा हूँ, because अगर ये लिख सकते हैं, of course when you talk about rap it is rhythm and poetry, but yeah this is the insane combination. Hats off to you. मतलब you have a lot. मुझसे जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यार तू, तेरा कोई कंपटीशन, मतलब कंपटीशन के बारे में बात करते, तो मैं सीधा ये बोलती हूँ यार मुझे कंपटीशन चाहिए ही नहीं. Exactly. Honestly, I mean I don't want to compete with anyone. Right. Like ना मुझे किसी से कंधे से कंधा मिला के चलना है, ना मुझे ये साबित करना है कि मैं किसी से कम नहीं. मुझे सिर्फ अपना मन जीना है, अपने खुद के पर लगा कर उड़ना है. So जब ये लोग ये बोलते हैं ना, I just tell them that competition I don't have any, I don't want any. You just want money. You just want, so it is like I don't have any and I don't want any. You just want money. I want peace. I want peace, honey. Yeah. Dude, I think we can go full night. अगर बात करते हैं तो पूरा दिन. Yeah. Any day. I think your friends are really lucky जो मतलब they have you, मतलब कि वो कभी भी यार कुछ सुना हो यार. No, that never happens. My friends are lucky. मुझसे मेरे दोस्त बोलते हैं कि we are lucky not because you're a rapper, but because you're a good chef. I'm a good cook. Yeah, I'm a very good cook. Nice, तो वो लोग ये बोलते हैं कि मुझसे बोलते हैं कि so हम मतलब ऐसे ना we call each other भाई करके. So they're like निक्की भाई, we are happy just because you're a good chef and तुमसे लड़ाई करके बहुत नुकसान होगा. Because शब्द की तो कमी नहीं है ना, मतलब लड़ाई करे, मतलब इतने शब्द है.
कि यार वो थक जाएगा, या बोलेगा वो "ओके भाई माफ कर दो"। वो तो एक्स में आपने देख ही लिया होगा। हाँ ऑफ कोर्स, या टेल मी या who's your favorite in इंडिया से, अगर अगर लाइक मेल एंड फीमेल ऐसा दो कैटेगरी बनाए कि यार तो मेल में कौन फेवरेट है और फीमेल रैपर्स में कौन फेवरेट है? रैपर्स, यस। आई थॉट जनरली पूछ रहे हो, मैं तो अरे दिमाग में जनरली, बिठा भी लिया था। अरे नहीं यार, रैप की बात कर। ओके सो I like Raftaar a lot, हम्म। and that is because I love his selection of words. या और जब वो गाना गाते हैं ना तो गूज़बम्स आते हैं, आते honestly, like ऐसा लगता है ओ वाह। लाइक व्हेन आई So हर्ड जो मिस्टर नायर जो एल्बम आया, जब मैंने सुना, मतलब yeah, मैं बोला कि यार मैं अगर मैं सुनने बैठ रहा हूँ ना, amazing, पूरा सुनूंगा, नहीं तो फिर मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो आई जस्ट वेटेड फॉर अ वीक। honestly, या yeah, that is amazing. मतलब या so we Raftaar Bhaiya and I did an interview also on Facebook. ओके। So तब I told him also this कि मेरी वर्कआउट प्लेलिस्ट है उनका मिस्टर नायर। एंड या ऑनेस्टली मतलब माय मदर वाज लाइक कि तू रोज रोज यही गाने सुनती है, बोर नहीं होती? तो एग्जैक्टली। मैंने कहा जिस दिन आप ये याद करोगी ना उस दिन मैं चेंज करूंगी, राइट। एंड दैट इज नॉट गोना हैपन। या लाइक दैट्स आई थिंक लाइक ऑल द सॉन्ग्स आर गुड, बट मेरे दो तीन फेवरेट है, बट ही हैज अ डिफरेंट कमांड ऑन राइटिंग। हैट्स ऑफ। वेरी वेरी वेल कमांड। उनका उनका वो सॉन्ग था, सबसे पहले जो मैंने सुना था वो, यार बहुत मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा ये करके दिखाओ। हाँ 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 हाँ। तो जब वो मैंने पहला सॉन्ग सुना था उनका, सो उसके बाद से आई वाज लाइक अ बिग फैन ऑफ हिज। या ही इज एंड फीमेल को अमेजिंग। तो पता है नहीं, फीमेल रैपर। स्टानिक, अरे यार ये तो अब मतलब, आई डोंट नो, आई मीन एवरीबॉडी इज गुड यार, एवरीवन ओके इज गुड। इंटरनेशनल, यू फॉलो एनीवन इंटरनेशनल? नो आई डोंट एक्चुअली। ओके। देसी। So I am not a very, honestly, I'm not a very good listener. I mean, I don't listen to songs. ओके। And yeah, and that has been from ever. Like, कभी मैंने songs सुने नहीं है, अब मैंने सुनना शुरू करे हैं because मुझसे काफी लोग बोलते हैं कि सुन, इंस्पिरेशन ले, शायद राइट। कुछ अच्छा आए, या तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने सुनना फाइनली शुरू किया है। सो या नेक्स्ट टाइम अपन सो इंटरव्यू करेंगे तब मैं फेवरेट लेके आऊंगी। डेफिनेटली, बट या टेल मी वन, ये बहुत जन के साथ होता रहेगा कि यू लाइक यू आर राइटिंग समथिंग एंड या एक इन बिटवीन यू गेट स्टक, लाइक कुछ वर्ड नहीं आ रहा है या कुछ लाइन नहीं आ रही है, तो वैसे टाइम पे व्हेन यू गेट लाइक ब्लॉक, तो क्या करते हो? ओके सो जो भी टॉपिक पे मुझे लिखना है, हम्म। जैसे मुझे जब मुझे कैंसर पे लिखना था, सो आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर। ओके। तो मैंने उसको कॉल किया एंड आई आस्क्ड फॉर द कंप्लीट स्टोरी। मैंने बोला तू मेरे को पहले से बता, स्टेज ए से एंड तक क्या होता है। वाओ वाओ। तो मुझे हर चीज एक्सप्लेन कर, देख पहले ये होता है। सो आई केप्ट ऑन राइटिंग। मैंने ना पॉइंट बना लिए कि पहला पॉइंट इस चीज पे लिखना है, सेकंड पॉइंट ये रहेगा, थर्ड पॉइंट ये रहेगा। वाओ। सो सो वैसा पूरा पॉइंट्स बना लिया है। फिर वो सारा बन गया, उसके बाद आई वाज लाइक ओके फाइन, फिर लिखना शुरू करा। और कभी राइमिंग अगर नहीं आ पाता, बहुत बार ऐसा होता है कि आप ब्लॉक हो जाते हैं, नहीं कर पाते। या सो आई जस्ट, मतलब एक चीज मेरे अंदर है जो काफी राइटर्स को करनी भी चाहिए, एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। सो दिस इज व्हाट आई डू every time I write something. I just close my eyes, I join my hands in front of my paper and pen, and I actually speak this कि whatever I write, that should touch people. वाओ। And I honestly do that. And उसके बाद I don't know, that is like meditation बोलो, aura बोल लो, एक create हो जाता है, या फिर yeah whatever, it is amazing but वाओ। आई थिंक सबका अपना अपना रहता है, because like most of my friends they are like they while sleeping they think a lot, एक उस जोन में चले जाते हैं वो टॉपिक yeah पे। yeah एंड एज यू सेड, लाइक जैसे आपने डॉक्टर को फोन किया था, a lot of people do that research, like लाइव रिसर्च जिसको बोलते हैं, कि यार जिस पे एक्चुअली बीती है वो ही बता सकता right है, right बिकॉज right डॉक्टर तो वो ट्रीट कर रहा है लोगों को, तो आई थिंक वो रिसर्च भी बहुत जरूरी actually है जब ऐसा कोई टॉपिक हो तो। नाइस 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 नाइस।
ओह, सो बहुत बातें हो गई एंड यार। नॉट जस्ट दैट, अगर मुझे ये मैं तभी करती हूँ जब मुझे ऐसा कुछ लिखना है जिसके बारे में मुझे हाँ, कंप्लीट नॉलेज ना हो। राइट। इट्स क्योंकि बेटर टू आप डू पता चला अपन ने कुछ बोल आप पता चला बाद में कि आपने कुछ बोल दिया और बाद में यू रियलाइजिंग कि भैया राइट, ऐसे ये तो है नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो फिर लगता है ओ शिट। वाओ। सो टेल दैट इज मी हाउ आई। लाइक टेल मी द फैन मोमेंट, जो ऐसा कोई फैन हो जो दिमाग में छप गया हो कि भाई क्या कर दिया तूने यार, ऐसा मत करो। फैन मोमेंट, ओके सो आई वाज नॉट वेरी मच ऑनलाइन, लाइक मैं ज्यादा इंस्टा पे आती नहीं हूँ, एक्टिव नहीं थी इतना ज्यादा। अभी रिसेंटली थोड़ा एक्टिव होना शुरू किया है। बट देयर वर टू गाइस, छोटे बच्चे थे, एंड आई वाज ट्रैवलिंग हियर इन भोपाल, आई वाज ट्रैवलिंग, और उन्होंने बीच सड़क में मेरी गाड़ी रुकवाई। एक्चुअली उन्होंने गाड़ी के ओह आगे गॉड। ऐसे अपनी गाड़ी रोक दी। ओह शिट। उन्होंने आके, आई वाज गोइंग वेरी पीसफुली, हाँ, और फिर उन्होंने छत से आगे से गाड़ी रोक दी सामने, और फिर ऐसे रोको 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 रोको, एंड देन दे वर लाइक आईज मेरे तरफ में, एंड आई वाज विद अ फ्रेंड। ओके। सो मेरे तरफ आए एंड दे वर लाइक कि स्टारलाइट। सो आई सेड यस, वाओ। एंड तो बोलते कैन वी प्लीज टेक अ पिक्चर विद यू। तो मैंने कहा यार श्योर, व्हाई नॉट। मैं बाहर निकली, हमने पिक्चर्स लिए। सो ही वाज एक्चुअली शिवरिंग, दैट वाओ। गाय। उसका हाथ ऐसे ऐसे शिवर कर रहा था, वो बेचारा फोटो नहीं ले पा रहा था अच्छे से। एंड या तो ये हुआ कि वो फोटो नहीं ले पा रहा था। फिर उसके बाद ये होता है कि उसने बोला कि क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ प्लीज। मैंने कहा श्योर। मैंने कहा भाई गले मिल यार, ऐसा क्या है, जल्दी इतना और क्या। इतना बड़ी चीज नहीं है। एंड देन राइट। आई जस्ट शूक हैंड, और फिर हमने आई जस्ट नाइस। गेव अ हग टू हिम। ही वेंट बैक, एंड वो जाते जाते अपने दोस्त को बोल रहा था यार भाई जिंदगी संवर गई, जिंदगी संवर गई। ओह शिट, क्या सो बात है, क्या बात है। ऑनेस्टली वो सेम डे आई वाज फीलिंग वेरी लो, बहुत लो फील हो ओके। रहा था। बट वो देखने के बाद आई वाज लाइक नहीं यार, आई नीड टू लिव लॉन्ग। नाइस, सो एक एक फैन ने एंड वो मोमेंट देके चले गया कि हाँ। yeah, and the point is that I look very different in real life because I do not put a lot of makeup, and I look very normal. ओके। So तो that is why people do not recognize me. एक बार तो ऐसा हुआ था हसल, जब हसल का आखिरी दिन था, हम बैक स्टेज थे। So हाँ, two guys came and they were showing me my picture and they were asking me Starnik का है, please ये Starnik किधर का है? है, बताओ Starnik का है। I was like, oh, ठीक है, उसको देख रहा है। I was looking at him. I was looking at his face and I was okay, ठीक है। फिर उसके पीछे से दोस्त चिल्लाता है, अबे गधे भाई Starnik है। बोलना चाहिए था ना, एक काम कर, सीधा जा वहां से राइट ले, और एक वहां पे एक वैनिटी होगी। ओह Yeah, so गॉड। that also happened. So yeah, तो people मेरे को recognize इतने जल्दी नहीं कर पाते, and that is एक तरीके से अच्छा भी है that I can live my life या very हाँ। happily. Yeah. सो टेल मी अबाउट योर लाइक अ ड्रीम कोलैबोरेशन, कि यार इसके साथ काम करने में मजा आ जाएगा, कौन है ऐसा रफ्तार एक? भाई, रफ्तार भाई since ever. क्या वो तो उनको पता है हमेशा ये से ही था। चीज? हमने क्या, हाँ पता है उनको। अच्छा मैंने अच्छा। बोल दिया उनको। मैंने बोल दिया जब आपके बाकियों के साथ कोलैबोरेशन कंप्लीट हो जाए और तब आपको कोई मेरा नंबर भी आ आपको जाए यार। कोलैबोरेशन, हाँ, मेरा नंबर आ सके तो प्लीज जल्दी ले आना। वाह 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 वाह। बस सो ऐसा ना हो आई एम 40 year old और फिर रफ्तार भाई इज कमिंग, मैं कहता आजा कोलैबोरेट करता है। बट आई वुड लव टू डू इट विद हिम। नहीं, बट आई थिंक ही विल स्टिल बी किलिंग एट 40-50 जो भी है। या नो आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई बी अच्छा 40। योरसेल्फ, ओह गॉड। नहीं, आई एम श्योर यू विल किल इट। अभी आई बिकॉज अभी तो शुरुआत हुई है यार। ऑल या राइट, आई थिंक ओह गॉड कितनी बातें हो गई। सो आई थिंक वी आर एट लाइक द टाइम इज काइंड ऑफ अप, बट यस वी हैव टू थिंग्स टू डू। एक तो एक जोरदार परफॉर्मेंस बिफोर गोइंग, एंड ओके उसके बाद एक लास्ट मैसेज सबके लिए। कौन ओके। सा, सो क्या सुनाते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगी कि मेरा संडे को एक नया सॉन्ग आने वाला है, यस। एंड इट्स अबाउट जो कपल लॉकडाउन के कारण मिल नहीं पा रहे, एंड एंड दे आर अनहैप्पी बहुत ज्यादा। सो या इट इज अबाउट दैट एंड पीपल आर गोइंग टू लव इट। मैं लिरिक्स तो अभी नहीं बोलूंगी, बस मैं कोरस थोड़ा सा सुनाती हूँ एंड देन आई विल सिंग नारीवाद। सो हाँ, वो गाना इस तरीके से रहेगा दैट आई हेट दिस लॉकडाउन, खुद को ना रोक पाऊं, आई विश तू है जहां वहां मेरा तो रात पहुंच जाऊं। आई हेट दिस लॉकडाउन,
खुद को Wow. ना रोक पाऊं, आई विश तू है जहां वहां मेरा तो रात पहुंच जाऊं. That is going to be the chorus. Wow, wow, wow. क्या बात है. Yeah. Sounds so cool, like couple goals I or think a it's hashtag going. couple goals. I I hope so. I hope so. Fingers crossed. People will Yes, yes, like it. yes, Maybe. yes, yes. Yeah, yeah. नारीवाद हो जाए. Let's go. नारीवाद, okay. इक्वालिटी के नारे लगा लिए, फेमिनिज्म के झंडे लहरा लिए, हमको करना सब अलाउड क्योंकि हमें छोरी छोरी कर दे कुछ तो देंगे, लंबी चौड़ी थ्योरी कुत्ते मम्मी ने नहीं सिखाया, गाली नहीं बकते, लड़की कुछ भी कह दे बट तुम चुप रहोगे, इक्वालिटी पर अन टू डेट पे पैसे तुम ही दोगे, वो कर दे तुमको खोखला पर उसको नहीं परखते, नारीवाद की करो जय कह के ये नारी तुमको खरोचे, डर तो बनता है इनके हाथ जनता है, थोड़ा रोना धोना इनका सारा काम बनता है, नारीवाद की करो जय कह के ये नारी तुमको खरोचे, डर तो बनता है इनके हाथ जनता है, थोड़ा रोना धोना सारा काम बनता है, मैं गाली बक दूं तो चलता है, मैं मारू चलता है, लड़के ताड़ू चलता है, लंबे लाइन छोड़ आगे बढ़ चलता है, घर पे बैठू चलता है, दो बहाने चलता है, हैशटैग मी टू पे झूठ बोलो चलता है, डाउरी के इल्जाम में पैसे लूटू चलता है, हुस्न दिखा के प्रमोशन के लिए फिट हुए में तुझको उठा के सीट ले लो चलता है, नारीवाद की करो जय कह के ये नारी तुमको खरोचे, डर तो बनता है इनके हाथ जनता है, थोड़ा रोना धोना सारा काम बनता है, फेमिनिज्म ने आज ये भी दिखाया, छोरियों को बेचारियां छोरियों ने ही बनाया, तुमको बढ़ना है वो बढ़ती है, पहाड़ अकेले चढ़ती हैं, कुछ है जिनको वाहनों के पल्लू ने छुपाया, कंधे से कंधा मिला के चलना है तो चल दो ना, भी मसला है तो हल दो ना, हक की लड़ाई कह के बेफिजूल अकड़ो ना, हक की लड़ाई कह के बेफिजूल झगड़ो ना, सुनो बालाजी में सोचो एकता ना होती, चांद कल्पना की कल्पना ही ना होती, मुकाबले में मैरी कॉम मुंह के बल न पहनती, सोच अगर झांसी की रानी वीर नहीं होती, सती बहाने बना के पीछे हटना आसान, 21वीं सदी तुझको कौन रोकेगा लगा जान, हिंदुस्तान का जाके बन अभिमान, मांगते नहीं छोरी कमाते हैं सम्मान. क्या बात है, क्या बात है, क्या नारीवाद बात है. Thank you so much. also going to come soon, like it's going to release soon. And yeah, let's see how that one goes, because first Yeah, नारीवाद वन से लोगों को बहुत ज्यादा हाई होप्स हो गए हैं, yeah. and now like if something comes like part 2 अगर आता है तो it should be amazing. Mm-hmm. And Of course. Yes, and yeah, thank you for joining with us. बहुत मजा आया बात thank you करके. so much, thank you so much. Yes, and जाने के पहले एक लास्ट मैसेज व्यूअर्स के लिए. Okay, so यार जितने भी रैपर्स हो यहाँ पे, जो भी लिख रहे हो दिल से लिखो, एंड जो भी काम आप करते हो ना सब कुछ आसान होता है, बस मन से करना चाहिए, वो काम मन से आना चाहिए. एंड सेकेंडली लॉकडाउन है, घर पे बैठे रहो यार, बाहर मत जाओ, और बस यार बाकी तो सब स्मार्ट इनफ, सबको पता ही है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, मोदी जी काफी मोदी अंकल ने बहुत कुछ बता ही दिया है. Yes. बाहर जाओगे सूजी लेकर आओगे. But thank you so much. बहुत मजा आया. I think if टाइम होता तो यार तो और पता नहीं कितने घंटे निकल जाते. But I was not expecting this. I was like कि थोड़ा सीरियस होगा. But इतना मजा आया जब सीरियस भी बातें हुई. Like हर तरह की बातें. Like I think we covered all the topics. Of course, yeah. Yes, बहुत मजा आया. Like everything. Yes. Your background, your current scene, your hustle show. Yeah. Inspiration. Anything. It was. कोई मिस नहीं हुआ, राइट? सब बातें तो हो गई. Yes. Almost. Yes. बाकी के लिए तो काफी रात भर चाहिए पड़ेगी बाकी के लिए. हाँ, of course. That will do it later. But for now, thank you so much. Yes. And Okay. I'll see you soon. Bye. Same here. It was wonderful. Yes. Take care. Bye-bye. Take care. Guys, बहुत मजा आया. Like I personally never thought कि इतना मजा आएगा, लेकिन बहुत मजा आया. In fact, I tried to cover all the questions जो भी लिखे थे, जो भी आए थे DM में, और काफी लोगों ने पूछा था, मेरे पर्सनल जो भी थे. तो अगर तुमको और सवाल है, DM her, she'll reply. And again, I would like to thank her for joining. बहुत लंबा सेशन हुआ, बहुत मजा आया. आप लोग बहुत सीखने मिला रहेगा about her personal life and likes and dislikes and everything. And I'll see you guys tomorrow. Tomorrow we have Tracy with us. She is an international artist. She is all the way from Russia. तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा. So कल शाम को 6 बजे MTV Hustle
फ्रॉम होम मेरे साथ. माय नेम इज परितोष परमार. You can follow me. I represent to the culture. You can follow to the culture also. And I'll see you guys tomorrow. कल शाम 6 बजे. एंड हम MTV हसल फ्रॉम होम घर पे भी आ रहा है MTV पर 7 बजे एवरी संडे. तो कल मिलते हैं 6 बजे. सी यू गाइस. बाय बाय बाय. पीस.